السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے اپنے سبق نمبر 24 شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے کا مطالعہ اور الفاظ معنی کیے تھے، جس میں سوار محمد حسین شہید کی 1971 کی جنگ میں جواں مردی اور شہادت کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج ہم اس کی مشق حل کریں گے، جس میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال اس میں پوچھا گیا ہے آپ سے، سوار محمد حسین شہید کا تعلق کہاں سے تھا؟ جواب ہے اس کا، سوار محمد حسین شہید کا تعلق راولپنڈی کی تحصیل گوجر خان کے ایک گاؤں ڈھوک پیر بخش کے ایک راجپوت گھرانے سے تھا۔ دوسرا سوال ہے، 1971 میں سوار محمد حسین شہید کس محاذ جنگ پر تھا؟ جواب ہے اس کا، 1971 کی جنگ میں سوار محمد حسین شہید شکر گڑھ کے محاذ پر تھا۔ تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، سوار محمد حسین شہید کی بے چینی کا سبب کیا تھا؟ جواب ہے اس کا، سوار محمد حسین دفاعی مورچوں میں تھا، جبکہ وہ مشین گن سیکشن میں جا کر براہ راست لڑائی میں حصہ لینے کے لیے بے چین تھا۔ دشمن کا ٹینک تباہ ہونے پر سوار محمد حسین شہید کیا کرتا؟ جواب ہے اس کا، جب بھی دشمن کا کوئی ٹینک تباہ ہوتا تو سوار محمد حسین شہید نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتا۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، سوار محمد حسین شہید کی شہادت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ سوار محمد حسین شہید کی شہادت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جب بھی ملک و قوم کو ہماری ضرورت پڑے، ہمیں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کے لیے تن من دھن قربان کر دینا چاہیے۔ آخری سوال ہے مختصر سوالات کا، نشان حیدر کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ جواب ہے اس کا، پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو میدان جنگ میں غیر معمولی جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان ملک کے لیے قربان کر دیں۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے، یعنی کہ یہاں پر کثیر انتخابی سوالات دیے گئے ہیں جن کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر نشان لگانا ہے ہم نے۔ پہلی عبارت ہے ہمارے پاس، سوار محمد حسین نے کب شہادت پائی؟ الف 1948 کی جنگ میں، ب 1965 کی جنگ میں، جیم 1971 کی جنگ میں، یا دال 1999 کی جنگ میں؟ تو درست جواب ہے 1971 کی جنگ میں، یعنی جیم جوز۔ دوسری بات پوچھی گئی ہم سے، سوار محمد حسین کس سیکشن میں جانا چاہتے تھے؟ الف توپ سیکشن میں، ب ٹینک سیکشن میں، جیم میزائل سیکشن میں، یا دال مشین گن سیکشن میں؟ تو درست جواب ہے دال مشین گن سیکشن میں۔ اگلی بات ہے ہمارے پاس، سوار محمد حسین شہید کس چیز کے آگے آگے دوڑتے جاتے تھے؟ الف جز ہیں گاڑی کے، ب ٹینکوں کے، جیم بختر بند گاڑیوں کے، اور دال گھوڑوں کے؟ تو درست جواب ہے ہمارے پاس ٹینکوں کے، ب جز۔ اس کے بعد تیسری عبارت ہے ہمارے پاس، چوتھی عبارت ہے، سوار محمد حسین شہید کی نشاندہی پر دشمن کے کتنے ٹینک تباہ ہوئے؟ الف 14، ب 16، جیم 18، یا دال 20؟ تو درست جواب ہے ہمارے پاس 18 جیم جز۔ اس کے بعد اگلی عبارت ہے، سوار محمد حسین شہید کے کتنے بھائی تھے؟ الف 1، ب 2، جیم 3، دال کوئی نہیں؟ تو درست جز ہے ہمارے پاس دال کوئی نہیں، وہ اکلوتے بیٹے تھے۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کیا ہے؟ الف نشان حیدر، ب ستارہ جرأت، جیم تمغہ امتیاز، دال ستارہ بصالت؟ تو درست جواب ہے ہمارے پاس الف جز نشان حیدر۔ سوار محمد حسین شہید کس محاذ جنگ پر شہید ہوئے؟ الف قصور،
बे चविंडा, जीम वाहगा, दाल शकरगढ़। तो दुरुस्त जवाब है दाल जुज़ शकरगढ़। उसके बाद है हमारे पास जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं 1 से 2 अल्फाज के जुमले बना देती हूँ, बाकी आपने जो है ख़ुद रोज़मर्रा और कवायद को जहन में लाते हुए उनकी दुरुस्ती के मुताबिक जो है जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है पैगाम रसानी, यानी कि पैगाम पहुँचाना। मौजूदा दौर में पैगाम रसानी का काम आसान हो गया है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं जुमला कि कदीम ज़माने में कबूतरों के ज़रिए पैगाम रसानी का काम किया जाता था। कान बहरे होना, मुताले के दौरान आपको बताया गया था कि ये मुहावरा है जिसका मजाजी मायने होगा सुनाई ना देना। कान ख़राब होते महसूस होना, समात मुतासिर होना। तो इसका जुमला आप बना सकते हैं, ट्रैफिक के शोर से कान बहरे होते महसूस होते हैं, या कान बहरे होते महसूस हुए, यानी कि इतना शोर था ट्रैफिक का कि आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद आपके पास अल्फाज है खातिर में ना लाना, जारहाना, पेशकदमी, पलक झपकने में, पामर्दी और सरबुलंदी। इनके जुमले जो हैं आपने कॉपीज़ में खुद हल करने हैं। इसके बाद देखें सवाल नंबर 4 है हमारे पास, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी उलट अल्फाज, बरअक्स मायने वाले अल्फाज। नौजवान, बूढ़ा, खुश, उदास या गमगीन, दुश्मन, दोस्त, दाखिल, खारिज, ख्वाब, हकीकत, पेशकदमी, पसपाई। उसके बाद है वाहिद अल्फाज को जमा में तब्दील करें, यानी कि वाहिद अल्फाज लिखे गए हैं, इनकी जमा आपने लिखनी है। ख्वाहिश, ख्वाहिशात, मौका, मौाक़े, मरहला, मराहिल, लम्हा, लम्हात, इत्तिला, इत्तिलाआत, फ़ौज, अफवाज, शहीद, शहदा। इसके आगे हमज़ा की अलामत नहीं आएगी, चूँकि आपको बताया जा चुका है उर्दू ज़बान में मुसलसल तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो उसके मुताबिक यहाँ पर हमज़ा की अलामत नहीं लगाई जाएगी। एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह कीजिए, यानी कि अब ज़ेर ज़बर लगानी है हमने ताकि लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह हो जाए। तरबियत, ते पे ज़बर, रे के नीचे ज़ेर, बे के नीचे ज़ेर, ये पे तशदीद और ज़बर, और ते हमारे पास साकिन है यानी जज़म की अलामत है। दिफ़ा, दाल के नीचे ज़ेर, फे पे ज़बर, एन हमारे पास साकिन, अलामत जज़म आएगी। वापस, वाव पे ज़बर, अलिफ साकिन है लेकिन कोई अलामत नहीं आएगी। पे के ऊपर ज़बर, सीन पे अलामत जज़म साकिन की। असलहा, अलिफ पे ज़बर, सीन पे जज़म, लाम के नीचे ज़ेर, हे के ऊपर ज़बर, और ये जो मद वाला हे है इसके ऊपर कोई अलामत नहीं आएगी। असलहा। दाखिल, दाल पे ज़बर, अलिफ बग़ैर अलामत के है, साकिन है। खे के नीचे ज़ेर, लाम पे अलामत जज़म। बादल, बे पे ज़बर, दाल पे ज़बर, लाम साकिन, अलामत जज़म लगाएंगे। बादल। निशाना, नून के नीचे ज़ेर, शीन पे ज़बर, नून पे फिर ज़बर और हे साकिन है, लफ्ज़ है ये निशाना। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, दी गई मिसाल की रोशनी में कॉलम जीम में दुरुस्त मुतरादिफ़ात लिखें। दुरुस्त मुतरादिफ़ यानी कि हम मायने अल्फाज लिखें। तो यहाँ पर अल्फाज लिखे हैं और कॉलम बे में उनके मुतज़ाद वो जो मुतरादिफ़ हैं वो बेतरतीबी से लिखे हैं। यहाँ हमने तरतीब देकर लिखने हैं। इस कॉलम के जो है मुतरादिफ़ बे कॉलम में लिखे हैं और इनको हमने तरतीब देकर इसके मुताबिक लिखना है। आपने ये नहीं करना कि कॉलम बे के सामने आपने कोई और लफ्ज़ लिखना है। आपने कॉलम अलिफ के जो है दुरुस्त मुतरादिफ़ बे से चुनकर जीम में लिखने हैं। अज़्म, अब उन्होंने यहाँ पर देखें आखिर में लिखा है हिम्मत, तो हमने उसको अज़्म के सामने लिखा हिम्मत। दुश्मन, इसका दुरुस्त मुतरादिफ़ है उदू, जो हमने दुश्मन के सामने वाले कॉलम में जीम में लिखा उदू। बेचैन, बेकरार, यहाँ हमने कॉलम जीम में लिखा बेचैन के सामने। हदफ, निशाना। शुजाअत, बहादुरी। बेमिसाल, बेनज़ीर। ज़िंदगी, हयात। यहाँ मश्क मुकम्मल हो गई। अब आते हैं सरगर्मी की तरफ। सरगर्मी में पहला काम है हमारे पास दी गई मिसाल के मुताबिक अल्फाज बनाएं। इन्हें हम सिफ़त निस्बती भी कह सकते हैं। जारह से जारहाना, आलिम से आलिमाना, कातिल से कातिलाना, फ़ातिह से फ़ातिहाना,
जाबिर से जाबिराना, हाकिम से हाकिमाना, शायर से शायराना, ताजिर से ताजराना, यानी कि ये हमारे पास सिफत निस्बती भी हैं ये तमाम अल्फाज, कातिलाना, आलिमाना, हाकिमाना वगैरह। उसके बाद देखें एक और अहम चीज़ सरगर्मी के हवाले से कि वक्तन फ़वक्तन इमला की सरगर्मियों का एहतमाम किया जाना भी ज़रूरी है। और इस सबक में दर्ज झैल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और आपने इनकी मशक़ करनी है, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि किन अल्फाज के आखिर में उर्दू जब लिखते हैं उर्दू में तो अलिफ आना चाहिए। धमाका और मोर्चा। तक़वियती सरगर्मी की तरफ मज़ीद ऐसे अल्फाज भी लिखवाए जा सकते हैं, मसलन डाका, समझौता, धंधा, धोखा, अड्डा, महीना, पसीना, यानी कि ये तमाम अल्फाज जो यहाँ लिखे हैं ये सब आपने जो है अलिफ के साथ लिखने हैं। आइंदा आपने इनको हे के साथ, मद वाली हे के साथ नहीं लिखना। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल, लुग़त की मदद से आलम और आलिम के मायने देखिए। दोनों लफ्ज़ों को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि उनके मानी वाज़े हो जाए, यानी कि जुमले बनाकर आपने वाज़े करना है कि ये इन दोनों लफ्ज़ों का फ़र्क क्या है और ये मुतशाबिह अल्फाज भी कहलाते हैं। ये जुमले मैंने बनाए हैं। आलम, ये सारा आलम अल्लाह ताला का खल्क करदा है। तख्लीक करदा भी लिख सकते हैं, खल्क करदा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब लाम में ज़ेर आ जाएगी लाम के नीचे तो यह लफ्ज़ बन जाएगा आलिम। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मजहबी आलिम थे, ठीक है। तो इन जुमलों से ही आपको वाज़ेह हो रहा है कि इन दोनों अल्फाज के मायने बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इमला एक जैसी है लेकिन इनका तलफ़ुज़ और इनके जुमले जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उसके बाद हमारे पास अगली सरगर्मी था कि लुग़त की मदद से नीचे दिए गए लफ्ज़ों के मानी देखिए और इन तीनों को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। तो पहला लफ्ज़ था पूत, कपूत और सपूत। ये लफ्ज़ आप सबक के मुताले के दौरान पढ़ चुके हैं। आइए इनके जुमले देखते हैं। ये देखिए मैंने मायने भी लिख दिए हैं यहाँ साथ। पहला लफ्ज़ है हमारे पास पूत, ये लिखा है, इसका मतलब होता है बेटा। बाप की तरबियत का असर उसके पूत में नज़र आता है, यानी उसके बेटे में नज़र आता है। और अक्सर आपने एक ज़रबुल मसल पे सुनी होगी, बहुत मशहूर ज़रबुल मसल है, पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। तो इसी तरह से अगला लफ्ज़ है हमारे पास कपूत, नालायक बेटा, गैर ज़िम्मेदार बेटा। अहमद तो कपूत निकला, माँ बाप की इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। उसके बाद आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास सपूत, नेक बेटा। सवार मोहम्मद हुसैन पाकिस्तान के जाबाज सपूत थे, यानी कि यहाँ पर बहुत नेक बेटे थे, बहादुर और नेक बेटे थे, बहादुर और लायक बेटे थे। तो ये हमारे पास मश्क है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है जो हलशुदा है, और जो काम आपका सवाल है जुमले वो आपने ख़ुद बनाने हैं कॉपीज़ में। मश्क के सवाल नंबर 3 के जो है जुमले आपने ख़ुद कॉपीज़ में लिखने हैं और खुशख़त लिखने हैं। अब बाकी मशक आपने अच्छी तरह से याद करनी है। अगले सबक के साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।